Today we will study about the wind load calculation procedure as per IS 875 1987 part 3. Before starting this wind load calculation, as a being civil engineer, we should know a wind load calculation design, and wind load is very important while designing a structure. Why wind loads are important in a design of a structure? So winds are produced by a difference in atmospheric pressure, which are preliminary due to difference in a temperature. So wind is essentially the large scale horizontal movement of free air like a earthquake. So it is a lateral force on a structure. It acts as a perpendicular load. Generally, wind pressure intensity increase with increasing the height of the structure. Indian Standard Code IS 875 1987 Part 3 explain the wind load calculation parameters. As per IS 875 1987 Part 3, the wind load on a building can be calculated for the following parameters. The first one is the building as a whole. Second is the individual structure elements such as the roofs and walls. And third is the individual cladding unit including a glazing and their fixing. So now we will see a calculation of a wind load, and with the step by step. I have already prepared a flow chart explaining wind load calculation. In this flow chart you can see a wind load calculation. The step 1 is the design wind speed, which is denoted by Vz, and which is can be find by a clause number 5.3. For finding a design wind speed, there are 4 parameters. First is the basic wind speed, that is known as a Vb. Second parameter is K1, K2 and K3. Now step 2 is the design wind pressure, which is the unit of design wind pressure is Newton per meter square, and which is calculated by a clause number 5.4. Step number 3 is a design wind load. The unit of design wind load is kilonewton per meter, and that is find by a clause number 6.3. Now we will see in a detail. So step 1 is a design wind speed Vz. Mathematically it is expressed as a Vz is equal to Vb into K1 into K2 into K3. सो अब ये Vb क्या है, K1 क्या है, K2 क्या है और K3 क्या है. सो Vb क्या है, सो रिस्क लेवल पे डिपेंड करता है. Vz जो है वो रिस्क लेवल पे डिपेंड करता है, और क्या क्या चीज़ें पे डिपेंड करता है. तो टेरेन रफनेस, हाइट एंड साइज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकल टोपोग्राफी, where Vz is a design wind speed at any height in a meter per second. Vb is a basic wind speed. सो बेसिक विंड स्पीड वो लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि अहमदाबाद में है, बड़ौदा में है, सूरत में है. तो Vb वी कैन फाइंड आउट बाय अ लोकेशन कैटेगरी. K1 is a probability factor, that is also called as a risk coefficient, and that can be find out by a clause number 5.3.1. K2 is a terrain, height and structure size, and K3 is a topography factor that can be calculated by a CL, clause number 5.3.3. सो नाउ अब हम देखेंगे कि K1 मतलब कि रिस्क कोफिशिएंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है. सो K1 हमें टेबल नंबर 1 ऑफ IS 875 1987 पार्ट 3 में से मिलेगा. सो K1 नॉर्मली 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है: बेसिक विंड स्पीड, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन लाइफ ऑफ द पीरियड. सो ये टेबल हमें दिख रहा है जिसमें क्लास ऑफ द स्ट्रक्चर मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर का क्लास किस कैटेगरी में आता है. सेकेंड वाला जो कॉलम है वो दिखा रहा है कि डिज़ाइन लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर क्या है, 50 है, 5 है, 25 है कि 100 है.
और K1 फैक्टर हमें बेसिक विंड स्पीड पे से मिल जाएगा, जैसे कि 33 है, 39 है, 44 है, 47 है। अब नेक्स्ट है K2 मतलब कि टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर। सो टेरेन कैटेगरी डिफरेंटाइज विथ रिस्पेक्ट टू द इफेक्ट्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस एंड नेचर ऑफ द विंड डायरेक्शंस। तो जैसे कि कैटेगरी नंबर 1 है, तो कैटेगरी नंबर 1 में कौन से बिल्डिंग्स आएंगे, तो एक्सपोज ओपन टेरेन विथ अ फ्यू और नो ऑब्स्ट्रक्शंस एंड विथ एवरेज हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एनी ऑब्जेक्ट सराउंडिंग द स्ट्रक्चर इज लेस देन 1.5 मीटर। मतलब कि 1.5 मीटर से जिस भी स्ट्रक्चर, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो उसके आजू बाजू में जो स्ट्रक्चर है वो 1.5 मीटर से नीचे अगर होगा तो वो कैटेगरी 1 में आएगा। कैटेगरी 2 में आएगा कि आजू बाजू वाले जो स्ट्रक्चर है वो 1.5 से लेके 10 मीटर के बिटवीन हो, तो वो कैटेगरी नंबर 2 में आएगा। नेक्स्ट है कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 3 में आएगा टेरेन विथ अ क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन हैविंग अ साइज ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर अप टू 10 मीटर इन अ हाइट विथ और विदाउट फ्यू आइसोलेटेड ट्रॉल स्ट्रक्चर्स। एंड कैटेगरी नंबर 4 में आएगा टेरेन विथ अ न्यूमेरियस लार्ज हाइट क्लोजली स्पेस्ड ऑब्स्ट्रक्शंस। तो आप लोगों को एग्जाम्पल में कैटेगरी ऑफ द स्ट्रक्चर दिया जाएगा कि कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है या कैटेगरी 4 है। तो कैटेगरी के ऊपर से आप लोगों को K2 फाइंड आउट करना है। The building and structure are classified into the following 3 different classes depending upon their size. तो क्लास A है, उसमें आएगा structure and or their components such as cladding, glazing, roofing, etc. having a maximum dimension, greatest horizontal or vertical dimension less than 20 मीटर। मतलब कि 20 मीटर से जो कम होगा वो कैटेगरी नंबर A में आएगा। कैटेगरी B में आएगा कि 20 से लेके 50 के बीच में जो होगा, मतलब कि स्ट्रक्चर एंड देयर कंपोनेंट सच एज क्लेडिंग, ग्लेजिंग, रूफिंग एट्सेट्रा हैविंग अ मैक्सिमम डायमेंशन, मतलब कि ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन बिटवीन 20 to 50 मीटर। मतलब कि कैटेगरी 1 में आएगा लेस देन 20 मीटर एंड कैटेगरी B मतलब कि क्लास B में आएगा 20 to 50 मीटर के बीच में जो भी स्ट्रक्चर है वो क्लास B में आएगा। और अप टू 50 होगा, ग्रेटर देन 50 वो क्लास C में आएगा। मतलब कि स्ट्रक्चर एंड और देयर कंपोनेंट सच एज क्लैडिंग, लेजिंग, रूफिंग एट्सेट्रा हैविंग अ मैक्सिमम डायमेंशन, ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन ग्रेटर देन 50 मीटर। सो ये 3 क्लास हमें पता चल गया, क्लास A, B एंड C। क्लास A मतलब कि 20 मीटर से कम होगा वो, क्लास B मतलब कि 20 to 50 के बीच में होगा वो, और क्लास 3 मतलब कि 50 से ज़्यादा होगा। सो हमें K2 कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें कैटेगरी देखनी है कि कैटेगरी 1, 2, 3 और 4 में आता है हमारा कंपोनेंट। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, क्लास A में आ रहा है, क्लास B में आ रहा है, क्लास C में आ रहा है। देखो अब यहाँ पे हमें पार्ट मतलब ये टेबल नंबर 2 दिखाई दे रहा है, उसमें हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताई है, मतलब कि हाइट कौन सी है, टेरेन कैटेगरी दी है, मतलब कि टेरेन कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4, और उसमें भी सब डिवीज़न है A, B एंड C। मतलब कि हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें पता है कि 10 मीटर का करना है सपोज, और टेरेन कैटेगरी क्लास 1, 2, 3 या 4 मतलब जो भी है, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं टेरेन कैटेगरी 1, तो टेरेन कैटेगरी 1 में क्लास A ले रहे हैं तो हमारा K2 क्या होगा 1.05। अगर हम लोग क्लास B ले रहे हैं तो हमारा K2 क्या होगा 1.01। अगर हम लोग टेरेन कैटेगरी क्लास 3 ले रहे हैं और उसमें हमारी 15 हाइट है और उसमें हमारा क्लास B है तो क्या होगा, टेरेन कैटेगरी 3 15 तो 0.15 आएगा। अब हम देखेंगे K3 मतलब कि टोपोग्राफी फैक्टर। सो दिस फैक्टर डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी फीचर्स, hills, valley, cliff and ridges of which can significantly affect the wind speed in their vicinity
So the effect of the topography will be significant at a site when the upward slope is less than about 3 degree. The value of K3 may be taken to be equal to 1 and the value of K3 is confined in a range of 1 to 1.36. अब आएगा स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 है डिज़ाइन विंड प्रेशर, मतलब कि PZ. सो PZ कैन बी ऑब्टेन बाय द इक्वेशन ऑफ PZ इज इक्वल टू 0.6 VZ स्क्वायर. तो PZ क्या है उसमें, डिज़ाइन एंड विंड प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट ए हाइट Z. डिज़ाइन नेक्स्ट स्टेप 3 है डिज़ाइन विंड लोड. सो डिज़ाइन विंड लोड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू CF इंटू AE इंटू PZ, वेर CF इज द कोफिशिएंट ऑफ फोर्स, AE मीन्स इफेक्टिव फ्रंटल एरिया, PZ is a design and wind pressure in a Newton per meter square. So we can find design wind load F in a kilonewton per meter. Where CF is a coefficient of force, AE is the effective frontal area and PZ is a design wind pressure in a Newton per meter square. अब हम CF कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो CF हमें फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो है टेबल्स, मतलब ग्राफिकल टेबल्स है, जिसमें फर्स्ट है 4A. उसमें वैल्यू ऑफ CF दी है, वो क्या दी है, A/B और H/B इज़ ग्रेटर देन 1 एंड A/B एंड H/B इज़ लेस देन 1. अब यहाँ पे A एंड B क्या है, सो हमारी जो बिल्डिंग है उसमें विंड डायरेक्शन में, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आएगी वो A है और वो B है उसके सामने, और एलिवेशन में जो फ्रंट में आएगा वो H है और लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन है A. सो अब A/B का रेशियो जो है वो 1 से अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग CF फाइंड आउट करेंगे ग्राफ 4A में से, और अगर A/B का रेशियो लेस देन 1 होगा तो हम फाइंड आउट करेंगे CF ग्राफ नंबर 4B से. लेट्स से हमारा A/B है वो हमें मिला है 0.1. ठीक है, तो A/B हमें मिला 0.1 और हमारे मतलब ये जो लाइंस H/B A/B मिला है 0.1 एंड H/B है हमारा 10. लेट्स से 10 है, सो हम लोग ये जो 10 वाला जो ग्राफ है उसमें उसको 0.1 कहाँ पे टच हो रहा है वहाँ पे देख के सामने CF की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो ऐसे हमें CF मिलेगा. CF नॉर्मली हमें ये जो कर्व्स दिख रहे हैं 10, 5, 20, H/B, सो ये वाले कर्व्स में से मिलेगा, और ये जो वर्टिकल लाइंस जो दिख रही है वो लाइन हमें बता रही है A/B का पर्टिकुलर लोकेशन. सो A/B का लोकेशन और H/B का लोकेशन जहाँ पे भी हमें क्लैश होता है वहाँ से सीधी लाइन करके हम लोग CF फाइंड आउट कर सकते हैं. अब स्टेप नंबर 3 है डिज़ाइन विंड लोड. हमने स्टेप नंबर 3 का इक्वेशन देखा था CF इंटू AE इंटू PZ. तो CF हम लोग फाइंड कर लेंगे. AE फाइंड आउट करने के लिए इफेक्टिव फ्रंटल एरिया लेंगे, और PZ फ्रंटल एरिया मतलब कि ये जो प्लान है उसमें से A मल्टीप्लाई बाय B. सो जैसे कि A 5 है और B 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, और PZ डिज़ाइन विंड प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा. सो ये जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू CF इंटू AE इंटू PZ, उसके ऊपर से हमें डिज़ाइन विंड लोड किलो न्यूटन पर मीटर में मिलेगा. सो ये स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 के ऊपर से हम लोग
डिज़ाइन विंड लोड एंड डिज़ाइन विंड प्रेशर फाइंड आउट कर पाएंगे। और ये जो स्टेप्स मैंने अभी सिखाए हैं वो स्टेप्स को लेके आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा, जो एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी आप लोगों को। मैं विद एग्जाम्पल एक वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों को ज़्यादा आइडिया आएगा एज़ कम्पेयर टू दिस थियोरी। थैंक यू।